चलते हैं आगे स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियंस जो हैं वो अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 22 तक हैं। सो लेट्स सी फॉर द स्कॉर्पियो। Yeah. Okay, This is for relationship, finances, finances, your Health. health and overall overall year. well-being देख लेते हैं overall here. Okay, so relationship काफ़ी messed up दिखा रहा है for Scorpions. Clarity नहीं है basically. Okay. So they are getting defocused and somewhere because वो clarity नहीं मिल पा रही है उन्हें relationship में, it is going to make them feel overburdened emotionally. Okay. Yeah, and their finances are going to be nice. Again, there will be some help or some out of nowhere funds coming in. So some great news, some surprises positively for the finances. This is for the physical health and it is again great. I mean, great से ज़्यादा it shows more of insecurity कि आप सब बचा के रख रहे हो, आप सब ना ऐसे डर के रह रहे हो, आप insecured हो. कि And अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया तो ये हो जाएगा, मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा। yes, I yes, guess. मतलब आप बहुत ही see if you see the card ये बंदा सब ऐसे झकड़ के रखा हुआ है, पैरों के नीचे सब चीज़ें दबा के रखी हुई है, जैसे these are Yeah. prosperity symbols which the person doesn't want to let off go. Okay. डर के मारे होता है ना, एक हम एक होता है डर के मारे करना और Yeah. एक होता है इनसिक्योरिटीज कि नहीं मेरे पास आया तो मैं किसी को नहीं दूंगा। Yes, It's yes, kind of that. yes, नहीं, yes, I will keep yes. it to myself. Even Yes. that can be of knowledge also, that can be of anything. या तो आपका हेल्थ सही रहने वाला है एंड ये इनसिक्योरिटी थोड़ा सा अगर आप लेट गो ऑफ कर सकते हो, यू विल फील मोर फ्री एंड यू विल ब्रीथ लाइफ. Wow. Okay, not Oh. breathe oxygen or air but breathe life. ये है ओवरऑल वेलबींग. जैसे हमने कहा पहले कार्ड में, इट शोज लॉट ऑफ बर्डन. Okay, trying to carry lot of burden, again looking behind. I mean, this card is again a sign of like insecurity. Insecurities. So just try to work from where this insecurity is coming in, uska root cause, and try to rectify it there. So आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन हो रहा है कि रिलेशनशिप थोड़े से गड़बड़ हैं, उसके बाद आप अपना सब कुछ ऐसे छुपा छुपा के रह रहे हो एंड यू आर Yes. स्कैर्ड, यू आर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। yeah, something like that. So it is a pure card of insecurity. I mean, ये पूरा साल ना, अगर कौन पूरा साल इनसिक्योर होके बिता सकता है यार? नो वन इवन वॉन्ट्स टू. सो लकी यू गाइज आर कि आपको ये गाइडेंस पहले से मिल रहा है एंड यू कैन रियली वर्क ऑन इट. ऑफ कोर्स वर्क स्टेप बाय स्टेप, टेक बेबी स्टेप्स. वी आर Yes. नॉट आस्किंग यू टू ब्रिंग इन ड्रामेटिक चेंजेस इन योर लाइफ, बट थोड़ा करके आप काम करेंगे तो ओवरऑल ये साल आपके लिए सही जाएगा. अब हम देखते हैं स्टार गाइडेंस हमें क्या दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए सेल्फ केयर के लिए। ये एक अलग से आया है, छूट गया था तो हम इसे ही निकालते हैं। Okay, abundance planning. Oh. Great. Now see, this is Connection. just, Complete connecting. connection. Ekta, I'm glad that even you can relate how these cards are getting connected. Would you Connected. want to put in some inputs? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जैसे आपके जो फाइनेंस तो ठीक थे, आपके जो हेल्थ गड़बड़ था, रिलेशनशिप गड़बड़ था, जो ओवरऑल ईयर इनसिक्योरिटीज थी, Yeah. उसके लिए आपको जो प्लानिंग की ज़रूरत है वो Yes. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको करना क्या है लाइफ में। क्लियरिटी के लिए प्लानिंग बहुत Yeah, ज़रूरी so है। Ekta has Yes. hit the bullseye to read this card. Yeah, it really makes sense that if you really, जैसे मैंने कहा कि start working, start taking baby steps to work over your insecurities. Now when I say baby steps, it is planning. Yes, it Yeah, is planning. it You is have to planning. plan to make yourself clear Because कि आप yes. ही अपने आप को अच्छे से जानते हो. You know your fear, phobia and insecurities and try to jot it down. Try to work one by one. कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, challenging है. Try to seek help from people if needed. Yeah. आते हैं लास्ट सैजिटेरियस पे, जो नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 तक हैं, और बस अब ये फिनिश हो चुके हैं, सैजिटेरियस सभी जा चुके हैं, तो उनके लिए जो एंड ऑफ द ईयर का है वो कैसे है उनके साल में देखते हैं। Yeah, but of course है तो end of the year के, लेकिन since it is for the पूरा entire साल, year, yes. you really can start working. Yeah. हाँ, बट अभी फिनिश हुआ ना, तो ये उनका स्टार्ट शुरू हो चुका है, तो उनके लिए ये सबसे पहले है ये Yeah, कार्ड। yeah. ओके, सो हियर इट गोज एंड वन फ्रॉम हियर। Yes.
Okay, so relationship is going to be nice. It is very smooth. मतलब आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके ले जा रहे हो अपने रिलेशनशिप्स आगे अपने लाइफ में. फाइनेंसेस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. मे बी यू विल हैव टू फेस सम डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स इन योर जॉब Workspace. वर्क स्पेस और मे बी योर बिजनेस, जो होता ही है. Yeah, that बट is- इनको थोड़ा हाँ. ज़्यादा फेस करना पड़ेगा. हेल्थ इट शोज़ थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी और मे बी आई विल से थोड़ा सा होपलेस फीलिंग है, या थोड़ा सा नाराज़गी, एक हताशपना जो हम कहते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग नॉट ग्रीडी, बट वो खुद के पास जो है वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील ना करके दूसरों की चीज़ या दूसरों का लाइफ देख के वो काफ़ी लो फील Jealous. कर रहे हैं. इट कुड बी जेलस, इट कुड बी मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई. ओके, द सेल्फ डिफीट जो फीलिंग होती है, लो सेल्फ एस्टीम, हाँ. लो कॉन्फिडेंस. या जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फाइनेंसेस के Finance. लिए पॉलिटिक्स, तो मे बी वो वही जोन इज कैरिंग Mental. आउट द मेंटल हेल्थ. द मेंटल हेल्थ की वही जोन की वजह से एक वो फीलिंग आ जाता है कि यार इधर भी ध्यान दो, इधर भी ध्यान दो, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, लोग आगे बढ़ गए, मैं तो यहीं पे हूँ. सो आई विल Oh. नॉट कॉल इट जेलसी. It Okay. is somewhere blaming self, Self. self guilt, something. It is self, it is within. It is within. Yeah, Okay. yeah. But overall अगर आप किसी का हेल्प लेते हो, जो आपको आएगा पूरे साल, हमेशा आपको जब जब चैलेंजेस आएंगे, जब जब ये पॉलिटिक्स ड्रामा से डील करना होगा, देयर विल बी सम गाइडिंग लाइट कमिंग इन. सो इफ़ यू गाइज टैप इन टू सीक हेल्प ऑफ दैट गाइडेंस लाइट, then it is going to be wonderful. वाओ. तो और हमें और गाइडेंस के लिए जो हमारे जो सेल्फ केयर कार्ड हैं वो क्या कहते हैं सैजिटेरियस के लिए, देखते हैं. One card. ओहो. ये है. ओ, ये भी खुद दो. Oh my God. चलो. लोग तीन Let's अपने see. आप ही तीन अपने आ आप रहे ही, हैं. मतलब ना ऐसे होता है कि शायद आज- उनको बहुत ज्यादा जरूरत है. हाँ, उछल उछल के भाई हम भी हम भी. Okay, so it says Oh wow. look for fairies. Now see, Ekta, this is so So brilliantly connected much. to the thread we just did in the tarot, the guiding light. Guiding Look light. for the fairies. It's one and the same thing. So please look for light. Please look ahead for hope. Please have a positive attitude, a positive approach towards any kind of challenging situation that Yes, comes in. Yeah, yes. and a sweet treat. So be sweet to yourself. Yes. Yes. Very important. जो just Very I important. said, I just spoke like it is self guilt Self, and yes. self low esteem, खुद को कोसना. हाँ. So खुद से मिठास बनाए रखो, खुद को स्वीट ट्रीट देना है, खुद को अच्छी बातें करनी है. Positive and very very sweet talk to yourself. Yeah. You can look into your mirror. सामने बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए. Yeah. And again, wonderful. The third card, it says chanting. Chanting. Okay, so of course we Indians are anyways we know the importance of chanting. It could be any chant. आप जो भी गुरु में मानते हैं, जो भी भगवान, जो भी कुलदेव कुलदेवी, आपको अगर कोई गुरु मंत्र दिया गया है, normal ओम नमः शिवाय, normal ओम chanting is also going to work wonders for you. And I am sure कि कभी कभी जो guiding light होती है ना, not necessary there should be some person, yes. or some group of people. At times when you sit and chant and meditate, एक दिमाग की Light. बत्ती जलती है, हाँ, एक लाइट actually दिमाग की बत्ती जलती है फ्लिकर तभी. होती है, and that is the guidance that divine wants to give you. So while chanting, अगर कोई guidance आ रहा है, then please execute that. Wow. Yeah. So ये Sagittarius के लिए बहुत ही सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर के लिए yeah. बहुत ही अच्छे कार्ड्स बताए हैं. सारे रिलेशनशिप में आए थे और हमने आज अभी जितने भी कार्ड्स निकाले टैरो एंड सेल्फ केयर, दे वर एक्चुअली इंटररिलेटेड. Yeah. दे वर एक्चुअली कनेक्टिंग टू ईच अदर कि Yeah. आपके ये कार्ड हैं राशियों के और इसके लिए सेल्फ केयर क्या है. Yeah, but otherwise, I mean, for everyone, this card was amazing. The spread, the guidance that came in was wonderful. Only for Librans, if I'm not mistaken, Yes. जो finances के लिए tower आया था. हाँ. So just a request, please manage your finances अभी से, and don't get carried away. Use your entire logic, brain. Use your guidance, and see to that you don't take a wrong decision. Don't get carried away by what people say, right? Because आपको finances थोड़ा सा
प्रॉब्लम्स दिख रहा है, अदरवाइज इट इज़ वंडरफुल फॉर एवरीवन। ये साल जैसे हमने कहा कि शनि का साल है और प्लस 24 इज अ नंबर ऑफ वीनस, तो वीनस को बढ़ाइए, हम जो लेडीज़ हैं हमको खुश रखिए, तो हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे। सो काजल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड शोइंग अस द पाथ्स एंड गाइडेंस टू एवरीवन। पूरे साल में सबके राशियों के साथ क्या क्या होने वाला है ये हमें पता चला। सो काजल, थैंक यू वेरी मच। Thank you for having me on this platform and wish you all a happy new year. And if anyone needs any guidance या आप लोग चाहते हैं कि हम और कोई स्पेसिफिक कुछ करें, specific question add करें, you can please give your suggestions. Definitely, I am going to write her handles in my Instagram and Facebook and YouTube also. You can contact her. इनका नंबर भी मैं लिख दूंगी, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एरियाज में कुछ करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। आपको हर एक टाइप की गाइडेंस भी मिलेगी, हर एक चीज़ के लिए काजल है। So thank you very much guys. We wish you a very very happy new year and a very healthy new year ahead. Yes.